will be discussing file handling in C++. So the learning objectives for today's session are that we would be able to define a file, identify the relevance of creating files, decide which file mode is required with respect to operations on the file, store data in a file, access data record by record from the file, move pointer within the file, and of course, open and close files. So these are our learning objectives for today. So before we start, let us have a few discussion. Let us have a small discussion on why do we need files. So we need files for storing, retrieving, and updating data, right? So before we talk about these huge words, store, retrieve, and update, let us just discuss an analogy. When we were young, our parents used to keep these diaries. In these diaries, they used to store phone numbers of all relatives, right? So it used to be 7, 2, 9, 8, 4 numbers filled with numbers. That diary used to be. In fact, they also used to write the birth dates and everything in a diary. So when phones came in and we got this opportunity to have a system wherein we can store our data, it was fabulous, and suddenly the diaries disappeared. So that is the concept of storing. Now the phones allowed us to store data, and also they allowed us to retrieve data. If we want to call somebody, we can save somebody's number, and when we want to call somebody, we can easily retrieve their phone numbers, right? And similarly, if somebody changes his or her phone number, it was now very easy on a phone to update that number. So we need files for storing, retrieving, and updating data. Everything around, even right now when I'm speaking to you, even whatever I am discussing with you, I am using my memory, right? And I'm retrieving the data from my memory and I am sharing it with you. So similarly, in our computer system also, we have files. You have already studied about these files in your previous classes. You know about primary and secondary memory. So these places are used to store our data for future retrieval and reference, right? So now let us define file. So what is a file? A file is a collection of logically related data, right? So collection of logically related data. When I mean that, let's again take the example of your smartphones. So what happens in your smartphone? If you just look through, you would find that there is a different place called gallery, wherein you store your videos and your images, right? And there's a different place called contacts, wherein you can see the phone numbers of all the people, right? So never have you ever seen, must have ever seen a situation जहाँ पर हमारा phone number, photo, video सब एक में हो, है ना? And if you see further, तो आप देखेंगे आपकी गैलरी में भी बाइफिकेशन होती है, जहाँ पे अगर आप चाहें तो एक साथ सब कुछ भी दिख सकता है, images and videos together, या आप अगर चाहें images देखनी है सिर्फ, videos देखनी है सिर्फ, तो वो भी आप देख सकते हैं. So this is how we say logically related data. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. If we talk about a school, स्कूल के अंदर बच्चों के मार्क्स, बच्चों की इंफॉर्मेशन और टीचर्स का डेटा अलग अलग रखा जाता है. तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के रिलेटेड जो भी डेटा है, दैट्स लॉजिकली रिलेटेड बिकॉज इट इज पर्टेनिंग टू अ स्टूडेंट, और टीचर का अलग. So I hope I have made myself clear here कि a file is a collection of logically related data. Now हम क्या कर रहे हैं? What are we doing now? Till class 11th and before studying this chapter files, आप लोगों ने जितने भी प्रोग्राम लिखे, उन प्रोग्राम्स को आप जब भी रन करते थे, आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्राम wherein you are accepting 5 marks. Then you are calculating total, then you are displaying percentage, right? So in that case, आप अगर प्रोग्राम दोबारा रन करेंगे and if you want कि मैं पुराना डेटा देखूं कि पुराना मैंने किस बच्चे का डेटा डाला था,
दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी तक आपने सिर्फ कैलकुलेशंस पे स्ट्रेस किया था. बट फ्रॉम नाउ ऑन हम अपनी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे और फाइल्स का इस्तेमाल करके डेटा स्टोर करना शुरू करेंगे. सो अब जो प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे वो प्रोग्राम्स they will do two types of communication, right? One, they will write data on the data file. Second, they will read the data from the data file. So now we will discuss what is writing and what is reading. Fine. So now we first move on to writing data on the data file. So when we say writing data, generally also, if we take another analogy and we try to understand what is writing, we would say that whenever we are typing something from the keyboard, it is displayed on the screen through a word processor, through a PowerPoint file, or in fact even our program C++ program files. So what is happening? What is happening is that data is flowing from the keyboard, goes to the memory. Which memory? It's the primary memory, right? प्राइमरी मेमोरी, रैम. जब हम फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं तो इट्स ऑलवेज देयर इन प्राइमरी मेमोरी, राइट? जब हम बार बार देखते हैं, रिपीट करते हैं, देन इट गोज इनटू आवर सेकेंडरी मेमोरी, ब्रेन के हिसाब से भी. सिमिलरली जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, जब तक हम सेव ना करें तब तक डेटा आपका हार्ड डिस्क में नहीं जाता, राइट? तब तक सारा काम प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होता है जो वॉलेटाइल है. सो द डेटा गोज फ्रॉम कीबोर्ड टू मेमोरी and then from memory to hard disk or storage device for permanent storage, for storage, retrieval, right? Next, now this is called the output stream. The entire thing that we've discussed, keyboard से memory, memory से hard disk, is the output stream. वह stream, अब stream क्या हुआ? हमने output तो समझा, पर stream का मतलब क्या हुआ? Stream is the flow of data, और ये फ्लो ऑफ डेटा कुछ फाइल्स रिक्वायर करता है. आज तक C++ में आपने बहुत सारी फाइल्स पढ़ी हैं. You've studied IOStream, you've studied stdio.h, conio.h, and you know that every file has some significance, right? So जब हम आउटपुट स्ट्रीम की बात करते हैं तो आउटपुट स्ट्रीम के लिए भी हमारे पास एक हेडर फाइल डिफाइंड है जिसका नाम है offstream.h. Now, अब ये तो जरूरी नहीं कि आप प्रोग्राम में सिर्फ आउटपुट मतलब डालेंगे ही, डेटा स्टोर ही करेंगे. आप चाहेंगे उसको रिट्रीव भी करना, और रिट्रीव करने का प्रोसेस क्या होगा ये भी आप सोचिए. तब तक हम आगे बढ़ते हैं. यस, सो नाउ वी कम बैक टू रीडिंग वाला पार्ट. सो वी डिस्कस्ड राइटिंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग रीडिंग. तो राइटिंग वाज फ्रॉम कीबोर्ड टू मेमोरी टू हार्ड डिस्क. Now when we are reading, we are assuming the data has been written on the hard disk. The file is there on your secondary memory, on your hard disk. So when we are retrieving our data file from the hard disk and bringing it to the memory and then displaying it onto the output device, this is the process of reading data from a data file. I'll just quickly go back and relate. Here we were discussing the data, whatever we enter goes to the memory and gets stored in the hard disk, right? Now it is the reversal. If we see, we are going to get the data file from the hard disk or storage device, then bring it to the main memory and then bring it to the output device, the screen, right? Or external storage device. So when I say external storage device, it can be your pen drives, right? USBs, pen drives. This is also reading. So bringing data from hard disk is reading. Storing data into hard disk is writing. As writing was called output stream, reading is called the input stream, right? And like output stream required what? Output stream required offstream.h. Input stream requires if stream.h. So operations before we start has to be opening a file. A file can be opened in two ways, right? Using constructor functions or using open function.
function we have discussed, offstream and ifstream, these header files, these also have classes. These are also related to classes. So a compiler has classes that are defined by these names, offstream and ifstream. Now, offstream file, when invokes its constructor like this, the file is created in which mode? Output mode. Right? So now what is this word? This becomes a little complex, right? Offstream file, offstream class has a constructor, right? So let's just quickly rewind and understand that when we talk about a class, class is a user-defined data type. A class consists of data members and functions that are encapsulated together into an object. So a class has to have an object to be able to access the functions and variables of the class. So here, when I'm saying this statement, in this statement, this is your class name and this is your object. And to this object, we are passing a file name, right? So when we are passing a file name, the name of the file here is stu.dat. Constructor is invoked, and what does the constructor do? It creates a file stu.dat on the hard disk, and that file is ready for receiving output from you, right? So which is the object? Out file, right? And which is your class here? Offstream. What is the name of the file? stu.dat. Now, out file can be any name. You can't change the name of the class. That will always remain as offstream, right? But yes, you can have your own names, whereas the object of the class is concerned. I have preferred out file. You can have in, of, whatever you want, but anything that is not a reserved word in C++, right? Like if, else, these are reserved words. So these names can't be used for the name of your object. Any other name can be used. So here it is mentioned also that out file is any user-defined object. Now let's just understand this statement. So this statement says out file, then these operators, cascading operators, then we have total marks, then again these operators, then slash n. If you just look at this, you would somewhere relate it with cout, right? In C++ you've been using cout. So cout का full form is console output. आप कहाँ भेज रहे हैं डेटा, कहाँ लिख रहे हैं? console output पे. Similarly यहाँ पे जब आप ऐसा कह रहे हैं तो उसका मतलब out file पर total marks लिखे जाए, न्यू लाइन लिखा जाए, और जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल दिखा रहे हैं, टोटल भी लिखा जाए. तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट में वी आर राइटिंग टोटल मार्क्स, दिस थिंग, दिस इज अ टेक्स्ट, डबल कोट्स में है, इट्स इन डबल कोट्स, सो दैट मीन्स ये एज इट इज लिखा जाएगा आपकी फाइल में टोटल मार्क्स. ये फिर स्लैश एन, दैट्स अ न्यू लाइन वुड बी पुश्ड, एंड देन आप नेक्स्ट लिख रहे हैं टोटल. तो ये टोटल, मान लीजिए आपके प्रोग्राम में कहीं पर आपने ये डिसाइड किया जो मेरा टोटल है उसको हम यूजर से इनपुट करवाएंगे, और टोटल के अंदर जो वैल्यू है कहीं वो 9 है. सो ये 9 जो है ये कहाँ चला जाएगा? आपकी फाइल में. कौन सी फाइल में? student.stu.dat. जो कौन पॉइंट कर रहा है जिसको? आउट फाइल. आउट फाइल इसको होल्ड करके खड़ा है. कौन सी फाइल को होल्ड करके खड़ा है? stu.dat. तो ये सारी चीजें कहां पर जा रही हैं? stu.dat में क्या किया जा रहा है? राइट किया जा रहा है कि रीड किया जा रहा है? राइट किया जा रहा है, क्योंकि आप ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. फाइन. नेक्स्ट वी मूव ऑन. नेक्स्ट मेथड, ये वाला तो जो हमारा प्रोसेस था कंस्ट्रक्टर मेथड था, और अब आप यहाँ पर देख रहे हो कंस्ट्रक्टर मेथड अगेन वी आर यूजिंग फॉर रीडिंग डेटा. जैसे हमने राइट किया था वैसे ही रीड किया था. क्विकली रिवाइज करेंगे फिर से. जब हम राइट करते हैं डेटा कीबोर्ड से मेमोरी से हार्ड डिस्क, जब हम रीड करते हैं तो उल्टा, हार्ड डिस्क से मेमोरी से आपकी स्क्रीन पर दिखता है. फाइन. सो यहाँ पे आप देखिए इधर इफ स्ट्रीम लिखा हुआ है ना, द क्लास हियर इज इफ स्ट्रीम, वहां पे ऑफ स्ट्रीम थी. ऑफ स्ट्रीम इज आउटपुट फाइल, राइट? आउटपुट के लिए यूज होती है. इफ स्ट्रीम होती है हमारी इनपुट के लिए.
ये जैसे मैंने आपसे कहा था, ये हमेशा इफ स्ट्रीम रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, ये क्लास का नाम है। पर हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये है इन फाइल, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे पीछे हमने क्या रखा था, आउट फाइल, यहाँ पे हमने रखा इन फाइल। नाम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए, इससे पता चल जाता है देखते हैं कि ओके ये फाइल इनपुट के लिए है, वो फाइल आउटपुट के लिए है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू आप ये भी रख सकते हैं, जस्ट बिकॉज कंफ्यूजन होती है। इट्स ऑलवेज प्रेफर टू हैव मीनिंगफुल नेम चिल्ड्रन, राइट? सो नाउ जो फाइल हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में बनाई थी और उसके अंदर टोटल मार्क्स और टोटल की वैल्यू जो कि हमने 9 बनाई थी वो डाली थी, अब हम उसको रीड कर रहे हैं। तो आप देखिए, इफ स्ट्रीम इन फाइल stu.dat, रीडिंग पर्पस के लिए इस फाइल को ओपन करिए। देन अब आपको डेटा निकालना है, निकालने के लिए यूज दीज ऑपरेटर्स, राइट? सो ये आपने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ व्हेन यू पुट इन दीज ऑपरेटर्स, तो सीन के साथ आप यूज करते हैं। सीन इज कंसोल इनपुट, राइट? तो सीन वाले ऑपरेटर्स आप यहाँ यूज करेंगे। और स्ट्रिंग आपने ये लिखा, ये स्ट्रिंग क्या है भाई? वहां तो हमने टोटल लिखा था। इट हार्डली मैटर्स। आपकी हार्ड डिस्क में अगर 9 लिखा हुआ है, अगर S लिखा हुआ है, जब आप गेट करोगे तो 1 बाय 1 जो भी चीज लिखी होगी वो गेट की जाएगी और यहाँ लाया जाएगा। अगर आप याद रखें तो पिछली फाइल स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, टोटल मार्क्स डबल कोट्स में। तो जब हम उसको गेट करेंगे, फर्स्ट लाइन गेट होगी टोटल मार्क्स की, यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स आएगा। जब हम नेक्स्ट वापस जाएं तो हम देखते हैं टोटल डाला था हमने, तो यहाँ पर नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारा टोटल, जो कि हमारा नंबर 9 था, राइट? सो अब हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा फाइल। सो इफ स्ट्रीम जो है वो आपकी इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट फाइल स्ट्रीम है, और स्ट्रीम आपकी आउटपुट फाइल स्ट्रीम है। फाइन, नाउ वी मूव ऑन। और अब हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं। अभी हमने पिछला मेथड देखा था, उसमें क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, ब्रैकेट्स में फाइल का नाम डालते ही आपका फाइल बन जाती थी, जिस पर्टिकुलर मोड में आप बनाना चाह रहे हैं, इनपुट मोड में, आउटपुट मोड में, जिस भी फाइल, जिस तरह की फाइल बनाना चाह रहे हैं वो बन जा रहा था। अब हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है ओपन मेथड। ओपन मेथड के अंदर प्रोसेस में क्या होता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा। आपने यहाँ पे अगेन ऑफ स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किया। जैसे हम यहाँ पे एक आउटपुट फाइल बना रहे हैं, तो ऑफ स्ट्रीम मैंने फिर वही नाम यूज किया, आउट फाइल, जो मुझे पसंद है। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। फिर इस फाइल के साथ हमें ओपन किसको करना है, मान लीजिए कोई और फाइल जिसका नाम एबीसी है, तो अब हम ब्रैकेट्स में डबल कोट्स एबीसी ना लिख के आउट फाइल डॉट ओपन एबीसी जब लिखेंगे तो वो एक एबीसी नाम की फाइल खोलेगा। किस मोड में खोलेगा, आउटपुट फाइल मोड में, आउटपुट मोड में, दैट इज राइटिंग के लिए। आपसे कीबोर्ड से डेटा लेगा, मेमोरी तक लेके जाएगा, हार्ड डिस्क में इस फाइल में राइटिंग की जा सकेगी। तो ये फाइल हार्ड डिस्क पे बनाई गई जिसका नाम है एबीसी। देन क्या फायदा है ओपन मेथड का? ओपन मेथड का फायदा ये होता है दैट आप एक बार ऑब्जेक्ट बनाइए और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ आप मल्टीपल फाइल्स खोल सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक और ये दो फाइल्स खोली हुई हैं, पर दूसरी फाइल खोलने से पहले आपको पहली फाइल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम में आउट फाइल सिर्फ एक फाइल के साथ ही रिलेट हो सकता है, राइट? सो हमने ये समझा कि हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर मेथड है और एक हमारा ओपन मेथड है। हमने ये समझा कि हम लोग हमेशा क्लास का नाम लिखते हैं ऑफ स्ट्रीम, फिर हम लिखते हैं अपनी मनपसंद का कोई नाम और फिर फाइल खोलते हैं, तो वो आउटपुट मोड में खुलेगी अगर आपने ऑफ स्ट्रीम लिखा, इनपुट मोड में खुलेगी अगर आपने इफ स्ट्रीम लिखा। और आप ओपन मेथड का अगर इस्तेमाल करेंगे देन आप लोग क्या करेंगे, अपने क्लास का नाम लिखेंगे, अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के साथ ओपन का इस्तेमाल करेंगे और डबल कोट्स में अपनी फाइल का नाम देंगे, राइट? पर ये भी फायदा है कि ओपन के साथ आपको बार बार क्लास नेम के साथ एसोसिएशन करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइल क्लोज कीजिए पहली और दूसरी आप ओपन कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज ओपन मेथड्स। नाउ वी मूव ऑन टू फाइल मोड्स। हमने अभी डिस्कस किया कि फाइल दो मोड में खुल सकती है। पहला हमने बोला इनपुट और आउटपुट, फाइन, ठीक है।
हमने इफ स्ट्रीम के साथ जब एसोसिएट किया, जब क्लास हमारी इफ स्ट्रीम है तो इनपुट मोड में ही फाइल खुलेगी, ऑफ स्ट्रीम तो आउटपुट, यानी राइटिंग के लिए ऑफ स्ट्रीम, रीडिंग के लिए इफ स्ट्रीम। पर हमारी जरूरतें कभी अलग भी हो सकती हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स आर नॉट इंटेलिजेंट। हमें मालूम है, व्हेन यू आर राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू माइट स्टार्ट राइटिंग एंड सडनली यू माइट फील कि ओ यहाँ पे ना बीच में मैं दैट लगाना भूल गया, आप वापस जाएंगे दैट एडजस्ट कर देंगे। आपको फिर लगेगा कि अरे आगे लिखना है, तो यू वुड नेवर ओवर राइट ना, आप किसी चीज के ऊपर नहीं लिखेंगे, हमेशा लास्ट लाइन से शुरू करेंगे, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट बट कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट, सिस्टम इज नॉट इंटेलिजेंट। तो उसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स को समझाया जाता है, इंटेलिजेंट बनाया जाता है। तो इसीलिए जब आप इन और आउट लिखते हैं, आप बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमको लिखना है, हम सिर्फ लिखते 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 एक ही बार में खत्म नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम फिर से कुछ जब लिखें तो लास्ट में ऐड हो। उसके लिए हमें अपने फाइल को एपीपी मोड में ऐड करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज एपीपी मोड? एपीपी मोड इज अपेंड मोड। बेटा आप लोग अगर डिक्शनरी भी चेक करेंगे तो आप समझेंगे अपेंड का मतलब होता ही है लास्ट में ऐड करना। तो अब लास्ट में ऐड करना जब मैं कह रही हूं तो यू शुड इमीडिएटली गेट इट कि मैम कह रही है लास्ट में ऐड करना, यानी लास्ट में लिखना। लिखने के लिए कौन सी, हम किस मोड की बात कर रहे हैं? आउटपुट, राइट? तो एपीपी आउटपुट के साथ एसोसिएटेड होता है, पर लिखेगा कहां? हमेशा एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है? और एक रिकॉर्ड आप पीछे ऐड कर सकते हैं यूजिंग एपीपी मोड। वहीं एक और आपके पास मोड है जिसका नाम है ATE। द फाइल पॉइंटर इन दिस केस एंड ऑफ द फाइल पे पहुंचता है। इसमें भी यही होता है, अब एपीपी पे आप हो, ऐप मोड में खोलते हो तो आपका पॉइंटर लास्ट में लेके जा जाता है। जैसे कर्सर में आप वर्ड में लिखते हो, वर्ड में टाइपिंग करते हो तो वो कर्सर जो ब्लिंक करता है वो भागता है ना आगे आगे, तो वैसे ही जब आप लिख रहे हो फाइल के अंदर तो कर्सर लास्ट में होना चाहिए, पर जब आप दोबारा नई बार खोलोगे तो पहले आ जाएगा। तो आपको उसको पीछे ले जाने के लिए बताना पड़ता है, हम एपीपी करने वाले हैं अपेंड, तो आईओएस एपीपी लिखेंगे तो एंड में जाएगा, एक रिकॉर्ड ऐड करेगा। वैसे ही एटीई में भी वो एंड में जाएगा। पर फर्क क्या हुआ? अगर यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो फर्क ये हुआ कि ये आपको अलाउ करता है कि कहीं बीच में अगर आप चाहें डेटा आगे पीछे देखना चाहते हैं, बीच फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, इसमें कहीं आपको कुछ अगर चेंज करना हो तो आप ये मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 8 का। ऐप मोड आपको ये अलाउ नहीं करता है, राइट? कि आप चेंजेस कर सके 8 की तरह, राइट? सो इफ यू सी द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल, एट द एंड ऑफ द फाइल, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूं आपके लिए, एंड इट अलाउज टू ऐड डेटा or to modify the existing data anywhere in the file. कहीं पर भी आप changes कर सकते हैं। Next is binary. हम लोग मोस्टली, आप लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं फाइल्स, वो बाइनरी फाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे फाइल्स दो टाइप्स की हो सकती हैं, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? उसका कारण है कि वो बहुत फास्ट होती हैं। फास्ट होने का मतलब ये है कि अगर हम एग्जाम्पल लें एक और, कि मैं हिंदी बोलती हूँ और मुझे किसी जापानीज से बात करनी है, तो जापानीज व्यक्ति से बात करने के लिए मुझे बीच में लगाना पड़ता है एक व्यक्ति जो मेरी बात को ट्रांसलेट करता है। तो ऑफ कोर्स अगर हम दोनों ये जापानीज भाषा जानते या वो हिंदी जानते तो हम जल्दी बात कर सकते थे, पर क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते एक दूसरे की भाषा, सो वी नीड समबडी इन बिटवीन जो हमारी भाषा को चेंज करेगा, एंड इट ऑफ कोर्स टेक्स लिटिल लॉन्गर। सिमिलरली जब हम फाइल्स की बात करते हैं, बाइनरी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसमें जब आप डेटा जिस तरह से भी मेमोरी में जाता है, मेमोरी में डेटा किस तरह से जाता है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो हमारे एबीसीडी तो नहीं समझता है। जब भी आप कीबोर्ड पे टाइपिंग शुरू करते हैं, कीबोर्ड का अपना भी एक काम होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है, तो सारा जो डेटा है आपका वो 01011100 फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह से उसको हार्ड डिस्क में डाल दिया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा मेमोरी में आया वैसे हार्ड डिस्क में डाला, इसलिए ये फास्ट होती है। टेक्स्ट फाइल में ऐसा नहीं होता। जब आप कोई भाषा लिखते हो, जो भी आप डेटा डाल रहे हैं वो 0 1s में कन्वर्ट होता है, पर उसके अंदर कुछ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन डाली जाती है।
तो ASCII कोड कन्वर्ट किया जाता है और डाला जाता है। यानी अगर हम बात करें कैपिटल A65 होता है ASCII में, और उसके बाद 65 से वो 10101111 बनता है। तो टेक्स्ट फाइल्स में 111 वाला पार्ट नहीं स्टोर होगा, 65 स्टोर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा 65 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसलिए हम बाइनरी फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम स्पीड अप रहें, हमें जरूरत नहीं है टेक्सचुअल कोड्स की, तो हम बाइनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इन मोड। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि इफ स्ट्रीम अगर हम यूज करते हैं तो इनपुट मोड में फाइल खुलती है, ऑफ स्ट्रीम में हम यूज करते हैं तो हमें किस मोड में फाइल खुलती है, ऑफ स्ट्रीम आउटपुट मोड में फाइल खुलती है। पर जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे दोनों काम करने हो एक ही साथ, हमें रीडिंग भी करनी है, हमें राइटिंग भी करनी है, तो एक बार हम ऑन करें फिर हम ऑफ करें, मतलब पहले हम फाइल को इनपुट मोड में खोलें, क्लोज करें, फिर आउटपुट मोड में खोलें, फिर क्लोज करें, फिर इनपुट मोड में खोलें, दैट्स अ टीडियस प्रोसेस। तो हमें कोई एक ऐसा मेथड ढूंढना चाहिए या हमें एक ऐसा मेथड मिलना चाहिए जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो। तो इसके लिए हम लोग आगे प्रोग्राम्स में, जब अभी प्रोग्राम डिस्कस करूंगी मैं आपसे आगे, हम देखेंगे कि इफ और ऑफ दोनों की फंक्शनैलिटी निभाता हुआ fstream.h होता है, राइट। एक हेडर फाइल fstream.h जिसकी क्लास है fstream, जो बेस क्लास होती है, और fstream.h आपको अलाउ करता है कि आप एक समय में फाइल के साथ रीडिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं। तो जब हम उस सिचुएशन में आते हैं तो हमें ये भी बताना पड़ता है करना क्या है। सो वी यूज IOSIN टू स्पेसिफाई कि फाइल जो है वो किस मोड में खुलेगी, इनपुट मोड में। और जब भी आप इन मोड में फाइल को खोलेंगे, फाइल पॉइंटर विल ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ द फाइल, राइट, एंड इट इज ऑलवेज रेडी फॉर रीडिंग। नेक्स्ट इज नो क्रिएट। जैसा नाम है वैसा काम है। अगर फाइल पहले से है, इफ द फाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो वो नई फाइल नहीं बनाएगा, इट ओपन्स द फाइल, अदरवाइज ओपन नहीं होने देगा। क्योंकि iOS आउट, अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी एक बड़ी खतरनाक आदत है। वो आदत ये है कि आउट मोड में व्हेन यू आर वर्किंग, आउट मोड में फाइल जितनी बार आप नाम देंगे वो पुरानी वाली फाइल को हटा के नई फाइल बना देता है। तो दिस इज डेंजरस, यू वुड नॉट वांट, आप नहीं चाहेंगे कि मैं, अब मुझे नहीं मालूम वो फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, पर मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि किसी और की फाइल उड़ जाए या मेरी खुद की पुरानी फाइल बनी हुई हट जाए। तो मैं क्या करूंगी, कंबाइन करना शुरू करूंगी। तो मैं जब भी iOS आउट का इस्तेमाल करूंगी, मैं बोलूंगी मुझे नो क्रिएट करना है। मतलब कि अगर वो फाइल आउटपुट मोड में नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मुझे भी नई नहीं बनानी है। वैसे ही एक चीज और आती है हमारे पास, नो रिप्लेस। जैसा नाम है वैसा काम है फिर से, कि अगर फाइल है किसी की बनी हुई या मेरी खुद की बनी हुई, तो उसको आपने रिप्लेस नहीं करना है। तो ये भी किसके कॉम्बिनेशन में यूज होता है, iOS आउट के साथ। कि अगर मुझे फाइल को राइट मोड में किसी फाइल को खोलना है और मैंने नाम दिया है, तो पहले आप चेक करिए, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो ठीक, नहीं करती है तो आप बना दीजिए, नई फाइल बना दीजिए, राइट। पर अगर वो प्रेजेंट है, अगर वो एग्जिस्ट करती है, तो प्लीज आप उसको मत चेंज कीजिए, नहीं हटाइए, अपनी नई मत बनाइए। नो क्रिएट में अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप फाइल को ओपन करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपने फाइल को ओपन नहीं करना है, अपने आप कोई नई फाइल नहीं बनानी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट हियर इज ट्रंक। सो iOS ट्रंक, ट्रंक का मतलब फुल फॉर्म अगर हम बोले तो इट्स ट्रंकेट। ट्रंकेट करने का it deletes the contents of the file if it exists। मतलब अगर आपकी फाइल में कोई भी डेटा है तो वो उस डेटा को हटा देगा। So that is what trunk is for. Fine. So here what we have discussed, here we have discussed file modes. Fine. और ये फाइल मोड्स हमें बताते हैं कि अगर आप फाइल को खोल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लास्ट में ऐड करना है, कहीं बीच में घूमना है, बाइनरी फाइल बनाते हैं ताकि हमारी स्पीड अच्छी रहे। हमेशा बाइनरी में मेमोरी में होता है, तो बाइनरी फॉर्म पार्ट में वो हार्ड डिस्क में भी जाए ताकि हमारी बाइनरी फाइल्स की जो स्पीड है उसका हम फायदा उठा सके। इनपुट मोड जब रीडिंग करनी है हमको। नो क्रिएट यानी कि अगर फाइल नहीं है तो नई मत बनाना। नो रिप्लेस, अगर फाइल पहले से है तो आपको उसको रिप्लेस नहीं करना। आउट मोड यानी हमें फाइल को आउटपुट मोड में खोलना है, यानी हमें उसे लिखना है।
और लिखने के लिए वही बात है, जब भी आप राइटिंग करेंगे फाइल पॉइंटर आपकी जो फाइल ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है उसको इरेज कर देगा हमेशा, जब भी आप आउटपुट में फाइल को खोलेंगे। ट्रंक मोड भी यही करता है, पर ट्रंक और आउट में ये फर्क है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती आउट के केस में तो वो नई फाइल बनाता है, सॉरी, आउट में वो नई फाइल बनाता है, पर ट्रंक में वो नई फाइल नहीं बनाता, जो फाइल बनी हुई है उसके डेटा को डिलीट कर देता है, राइट? सो दीज आर योर फाइल मोड्स। नाउ नेक्स्ट देयर इज दिस प्रोग्राम, राइट? तो इस प्रोग्राम को मैं चाहूंगी मैं आपको आई जस्ट शो यू थ्रू माय C++ कंपाइलर ताकि हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। I'll just get back. मैं अभी stop sharing करती हूँ and then I'll get back there. But what you need to understand through this program is that now we are going to use Fstream. Fine. Quickly, I would just jump to my program here. Yeah. So we will have our program here. इसको maximize करने में थोड़ा सा problem रहेगा. So let's just keep it this way only. So now you can see, let me just share my screen first. Yeah, let me just first share my screen and then I'll get back. Done. So yeah, we're already sharing our screen and I hope this is visible to you. Okay, just jumps a bit. Is it visible? No, ma'am. No. Okay, let me just check again. Right, is this visible to you? Yes, ma'am. Okay, thank you for the confirmation. Since we are jumping from the Windows interface to DOSBox, this happens. So now let's just try to understand this program. Fine. So here, as you see, I'll just do that. मैं full screen try करती हूँ. In case ये कुछ अटके, तो please do inform. I'll just get back to this time. Is it visible still? Yes, ma'am. Visible. Yes. Great. This solves my purpose. Fine. So here we are in our CPP. We have a CPP file. हम लोग अपने C++ के compiler Turbo C4 में हैं. आप देखिए यहाँ पे अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. This program is going to do very small thing. आपके लिए डेटा एक्सेप्ट करेगा और फाइल में डालेगा. Fine. So let's just try to understand जो भी डिस्कशन हमने अभी पीछे किया उस डिस्कशन को हम यहाँ पे समझते हैं. So यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं सबसे पहले लिखा गया है fstream.h. क्यों लिखा गया है? इसका कारण है जिस मैंने आपसे कहा कि जब हम दोनों चीजें यूज करना चाहें, फाइल को इनपुट मोड में भी और आउटपुट मोड में भी, तो हमें fstream लिखना होता है. इस प्रोग्राम में अगर आप देखें मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, देखिए इधर ये ऑक्सट्रीम भी यूज हो रहा है, एक्सट्रीम भी यूज हो रहा है. आपके मन में ये आएगा, मैम कह रही थी कि जब एक्सट्रीम यूज करते हैं तो हमको इसको ओपन उसे क्लोज नहीं करना पड़ता, तो मैम ने ऐसा क्यों किया? जस्ट मैं अवॉइड करना चाह रही थी 2 बार मैं लिखूं हैश इंक्लूड ostream.h फिर लिखूं इसके लिए, तो मैंने एक fstream लिख दिया क्योंकि वो बेस क्लास है, सबको कवर कर जाती है. फाइन. तो क्योंकि मुझे आपको शुरू से एग्जांपल देना था इसलिए मैंने आपके लिए प्रोग्राम बनाया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं we have our main program, you see CLR SCR clear screen, इसलिए conio.h लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन इस हेडर फाइल के साथ है. फाइन. फिर हमने एक एरे बनाया. ये एरे है नेम किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का. इसका साइज कितना है? 30. फाइन. नेक्स्ट वी हैव 2 वेरिएबल्स, रोल नंबर और मार्क्स. रोल नंबर को मैंने RN लिखा है, मार्क्स को मार्क्स लिखा है. अब हमें करना क्या है? We have to accept this data from the user and we have to write it in the file. So now you just see मैंने क्या किया यहाँ पे, offstream out file inf.dat. I have made a file. किस मोड में खोली है जरा ध्यान से इसको समझें. मैं बोलती हूँ उसके पहले आपके मन में आइडिया आ जाना चाहिए कि ऑफ स्ट्रीम लिखा है तो यानी ये आउटपुट मोड में खुली है, और आउटपुट मोड में खुलने का मतलब है इसमें हम लिखेंगे. फाइन. तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है आउट फाइल, आप कुछ भी रख सकते हैं. सो दिस इज द फाइल नेम inf.dat. किस मोड में खोली? अब आप देखिए यहाँ पर हमने कॉमा लगा के अपना एक मोड भी ऐड किया जो भी हमने पीछे प्रोग्राम में एग्जांपल्स में पीपीटी में आपको ऐड करके नहीं दिखाया था. तो इसका मतलब ये है कि ये वाली फाइल जिसका नाम inf.dat है वो बाइनरी मोड में खोली गई है. फाइन.
नाउ नेक्स्ट, आइए अब हम इसका देखते हैं, क्योंकि अभी तो ये फाइल ओपन हुई है, इसमें डेटा लिखना है। डेटा लिखने के लिए हमें यूजर से मांगना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा सी आउट एंटर स्टूडेंट नेम, जो कि ये हमें मैसेज दिखाएगा। फिर सी इन यानी नाम लेना है, सी आउट एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, सी इन हमने रोल नंबर लेना है आर एन वेरिएबल में। फिर एंटर स्टूडेंट मार्क्स, सी आउट एंटर स्टूडेंट मार्क्स, ना हमें मार्क्स स्टोर करने हैं सी इन मार्क्स में, वेरिएबल का नाम क्या है मार्क्स। अब देखिए यहां हमारा काम शुरू होता है इस क्वेश्चन से, जहां पे हम कह रहे हैं आउट फाइल। आउट फाइल किसके साथ जुड़ी हुई है, जल्दी से ध्यान देंगे तो देखेंगे ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है, inf.dat के साथ। तो आउट फाइल यानी inf.dat में नेम को आप राइट कीजिए। ये ऑपरेशंस राइटिंग के ऑपरेशंस हैं, आउट वाले ऑपरेशंस हैं, सी आउट के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही आउट फाइल के साथ ये जो ऑपरेशन है ये राइटिंग का ऑपरेशन है। इसके अंदर हमने कहा लिख दीजिए नेम को, और आपने लगाया साथ में पीछे स्लैश एन। इसका मतलब ये है आप नाम लिखने के बाद फाइल के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर भी लिखिए, ताकि अगली वैल्यू नेक्स्ट लाइन में जाए, ठीक है। फिर हमने अब नेक्स्ट लिखना है, तो हमने लिखा आउट फाइल, और अब हमने क्या लिखा आर एन। आर एन हमारा रोल नंबर है, तो अब हमने रोल नंबर को भी फाइल में लिख दिया, जो हमने यहां से एक्सेप्ट किया था इस स्टेटमेंट से, सी एन से। और उसको भी कहा कि लिखने के बाद आप स्लैश एन लगाइए, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट डेटा डाले। फिर हमने लास्ट में डाला मार्क्स, सेम प्रोसेस, आउट फाइल मार्क्स, एंड देन वी से आउट फाइल डॉट क्लोज। फाइन, लेट्स क्विकली रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। Here I go, compile fine, no warnings, no errors, and here we go, run. थोड़ा सा तंग करता है, it's okay, don't worry, run, and you see you'll get student name enter कीजिए, I'm entering ज्ञान here, then बोलता है रोल नंबर डालिए, I put 1, it asks me marks, जैसे पहले था ना, अभी ये सारा काम सीन सी आउट से हो रहा है। फाइन, अब क्या होगा, आउट फाइल वाला काम शुरू होगा, डेटा कहाँ जाएगा फाइल के अंदर। फाइन, और ये वाला डेटा जो हमारे पास है ये एग्जैक्टली फाइल में राइट किया गया। फाइन, सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमने आउट किया था, सी आउट तो यूज किया ही नहीं, रोल नंबर और नेम दिखाने के लिए कहीं पे भी सी आउट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या इस्तेमाल किया, इसके थ्रू जब हमने फाइल को रीड किया, इफ स्ट्रीम मोड में खोल के रीडिंग करी, रीडिंग करने के बाद जो फाइल के अंदर डेटा है, पहला उसको नेम में डाला, दूसरे को आरएन में डाला, तीसरे को मार्क्स में डाला, फिर इसे हमने अपनी स्क्रीन पे दिखाया सी आउट करके। अगर ये वाली लाइंस जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूं आपके लिए, अगर मैं हटा दूंगी तो डेटा आएगा तो है, आपकी हार्ड डिस्क फाइल से उठ के इनमें आएगा तो है, बट वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो इसी डेटा को जो हमारी फाइल से उठ के आया है, इसको हमने सी आउट से दिखाया। एंड देन लाइक गुड प्रोग्रामर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम मेमोरी को ठीक से यूटिलाइज करें, हमें अपनी फाइल को क्लोज कर देना चाहिए। तो देखिए मैंने आउट फाइल क्लोज किया, इन फाइल डॉट क्लोज किया, दोनों को क्लोज करके फाइनली आई हैव फिनिश्ड माय प्रोग्राम, राइट। सो नाउ आई वुड जस्ट quickly shift on to my presentation for the next part, and here I go. Oh, sorry, just a minute. I will choose the slide that is for you now, so that हम दोबारा से उसको वहां पर जंप ना करें। So just quickly from between, just run, और हम जल्दी से बात करें। Yes, so we come back. I'm sure ये रिविजन सारी हो गई होगी अच्छे से मन में, upstream output, upstream input. Now अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है हमने 3 वेरिएबल्स एक्सेप्ट कराए और हमने उनको फाइल में लिख दिया, ये प्रोग्राम तो मैंने आपको दिखाया, पर हम तो क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज क्लासेस, और क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब जैसे यहाँ मैंने ये क्लास डिक्लेयर की हुई है, इस क्लास में नेम है, रोल नंबर है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और मेरे पास 2 फंक्शंस हैं, गेट डेटा और पुट डेटा। गेट डेटा में वो डेटा ले रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो सी आउट नेम रोल नंबर, और पुट डेटा में वो नेम और रोल नंबर दिखा रहे हैं। इस तरह के डेटा को हम कैसे लिखें, हाउ डू वी राइट दिस इन आवर फाइल्स। अब क्वेश्चन ये आता है, तो इसके लिए हम लोगों का सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। अभी तक हम सिंपल स्ट्रिंग नंबर्स अलग अलग लिख रहे थे, पर अब हमें एक पूरा चंक लिखना है, उस चंक के अंदर सब कुछ होगा, रोल नंबर भी, नाम भी, मार्क्स भी, यानी एक पूरा पैकेट। इस पैकेट को लिखने के लिए जो हमारे पिछला तरीका था जिसमें हम सी आउट और सीन वाले ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, वो नहीं चलेगा।
तो जब हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रक्चर या क्लास को लिखना है तो हम वहां पर राइट और रीड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये राइट और रीड फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा क्लास का वो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लास्ट लाइन में, और आपके साथ उसका साइज। तो व्हाट डज दैट मीन, साइज क्यों चाहिए भाई, मैं लिखूंगी कहां तक लिखूंगी ये बताइए ना आप मुझे। अगर 10 बाइट्स तो 10 बाइट्स, ओके 10 बाइट तक लिखेंगे। वैसे जब मैं रीड करूंगी तो वो तो 0 1 की स्ट्रिंग्स हैं जो पड़ी हुई हैं अंदर आपके हार्ड डिस्क पर, तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि मैं रुकूंगी कहाँ। तो रुकने के लिए भी मुझे साइज चाहिए। उसने जब रीडिंग के टाइम पे जब मैंने मांगा, राइटिंग के टाइम पे जब मैंने बताया कि 10 बाइट का ऑब्जेक्ट है, तो रीड करते समय भी उसको पता हुआ हो कि 10 बाइट्स के बाद मुझे स्टॉप करना है। फाइन। सो जैसा कि मैं आपको कह रही थी, यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास। पहली चीज ये, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को टाइपकास्ट करते हैं कैड में, इसको हमेशा ऐसे ही करना है आपने, और साइज बताते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, राइट। सिमिलरली आउट फाइल के अंदर भी सेम प्रोसेस, आपको कैड स्टार और ऑब्जेक्ट का नाम एम्बरसेंड के साथ लिखना ही लिखना है और साइज बताना है आपको ऑब्जेक्ट का, राइट। नाउ जब हम फाइल पॉइंटर्स की बात करते हैं, झटपट समझते हैं, दो तरह के पॉइंटर्स हैं। फिर वही बात, जब दो फाइल्स हैं तो दो पॉइंटर्स हैं, इनपुट पॉइंटर आउटपुट पॉइंटर। तो इनपुट वाला पॉइंटर अलग चलता है, आउटपुट वाला पॉइंटर अलग चल रहा है। ये फाइल के अंदर जैसा आप देख रहे हो ये बिगिनिंग है, शायद हम यहाँ पर पहुंच गए इसलिए करंट है, या एंड। ये तीन चीजें हमारे फाइल के अंदर होती हैं। इनको हम रेफरेंस पोजीशंस कहते हैं। iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर BEG, CUR एंड, नाम रखना याद करना मुश्किल नहीं है। BEG मीन्स बिगिनिंग, CUR मीन्स करंट, एंड मीन्स एंड ऑफ फाइल। फाइन। इन सबको हम iOS के साथ जोड़ते हैं, सब चीजें iOS के साथ along with the scope resolution operator। दो चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास, seek G, seek P। सीक करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढूंढना है ना। तो सीक जी का मतलब गेट पॉइंटर, गेट मतलब कौन सा वाला पॉइंटर, रीडिंग वाला। पुट यानी पुट पॉइंटर, कौन सा वाला, आउटपुट वाला। तो आपको अगर ढूंढना है आपका रीडिंग वाला पॉइंटर कहाँ है तो आप यूज करोगे सीक जी। आपको अगर ढूंढना है राइटिंग वाला पॉइंटर कहाँ गया तो आप यूज करेंगे सीक पी, राइट। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम, हम क्या यूज करने जा रहे हैं, हम फाइल के ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट का नाम सीक जी, कितनी बाइट्स जाना है, कहां जाना है ये बताना है, और रेफरेंस पोजीशन, ये रेफरेंस पोजीशंस कौन सी होती हैं सीक जी सीक बी के साथ, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, iOS BEG, CUR और end, राइट। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इट बेटर। जब आप लिखते हो जीरो, जीरो मतलब आपने पहुंचना ही सबसे आगे है, तो ये ना भी लिखो तभी भी चलेगा, बट इट मीन्स कि फाइल पॉइंटर को आप बिगिनिंग पोजीशन पे ले जाइए और जीरो वहां पर होना चाहिए। ये देखिए 100 iOS कर, यानी इट मूव्स द पॉइंटर 100 बाइट्स। जैसे ही यहाँ पर भी यही था, इट मूव्स द पॉइंटर 0 बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। तो 0 मीन्स ऑलवेज द बिगिनिंग। तो सिमिलरली इट मूव्स द पॉइंटर 100 बाइट्स फॉरवर्ड इन द करंट पोजीशन। अगर करंट पोजीशन पर जहां पर भी आपका कर्सर है उससे 100 बाइट्स आगे जाइए। माइनस लगा देंगे आप तो पीछे मतलब होता है। तो यहाँ क्योंकि एंड लिखा है तो उसका मतलब है एंड पोजीशन पे जाइए, और कहां जाइए, कितना पीछे जाइए, 200 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। ओके, वैसे ही अभी हमने ढूंढा था कहां हो तुम, सीक जी, राइट, सीक पी। बताओ, गेट इज फॉर इनपुट, पी इज फॉर आउटपुट, पुट। नाउ नोइंग वेयर इज द फाइल पॉइंटर, वी वांट टू नो वेयर इज द फाइल पॉइंटर। तो उसके लिए अब हम बोलते हैं टेल। वहां सीक था, अब बताओ कहां हो, तो टेल। वहां ढूंढा, उसको ढूंढ लिया हमने, अब बताना पड़ेगा कि किधर है, तो हम यूज करेंगे टेल। टेल जी, टेल पी। जी स्टैंड्स फॉर गेट, पी स्टैंड्स फॉर पुट। फाइन। सिमिलरली वो भी यही है, ये आपकी जी होगा इनपुट के लिए और पी होगा आपके आउटपुट के लिए। फाइन। सो लेट्स जस्ट अगेन क्विकली गो बैक टू माय प्रोग्राम। एक प्रोग्राम मेरे पास आपके लिए और है। आई होप माय प्रोग्राम इज विजिबल। आई वुड रिक्वायर अ यस और नो। विजिबल? नाइस। सो अब मैं आपके लिए एक प्रोग्राम और जल्दी से रन कर देती हूँ, सो दैट हमें समझ में आए। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा, लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। राइट, इस प्रोग्राम को पहले मैं आपके लिए रन कर रही हूँ ताकि हम जल्दी से इसको समझ सकें, क्योंकि पहले मैंने आपको बेस दे दिया। जस्ट लेट्स रन एंड देन वील गेट बैक, डिकोड करेंगे कैसे चला, क्या चला। इस प्रोग्राम में मेन्यू है, यू हैव 4 ऑप्शंस, add a record, display a record, modify a record, exit।
मैं सबसे पहले डिस्प्ले करना चाहती हूँ, देखूं कुछ प्रोग्राम में है डेटा पड़ा है क्या फाइल में. यस आई सी, चेतना, अन्वेषा, गर्विता, चेतना, 2 बार ये सब चीजें हैं. ठीक है जी, ये फाइल में डेटा पड़ा हुआ है और फाइल पॉइंटर की हमारे यहाँ पर पोजीशन दिखाने की कोशिश की गई. नेक्स्ट मेन्यू दोबारा आया तो मैंने कहा अब मुझे ऐड करना है रिकॉर्ड. सो आई सेड आई वांट टू ऐड. उसने बोला बताइए कितने एंटर करने. तो अभी हम सिर्फ 1 ही एंटर करते हैं. नेम उन्होंने पूछा तो हमने नेम रख दिया गुरबानी. हमने किया एंटर. उन्होंने पूछा रोल नंबर बताइए, तो हमने कहा रोल नंबर है 4. उन्होंने कहा जी हो गया. अब आप डिस्प्ले करके चेक करिए. मैंने क्योंकि डिस्प्ले रिकॉर्ड नंबर 2 पे है, मैंने चेक किया तो जी मुझे गुरबानी दिख रही है. गुरबानी रोल नंबर 4 पर आ गई है. फाइन. नेक्स्ट मुझे मॉडिफाई करना है. जब मुझे मॉडिफाई करना है तो अब लेट मी जस्ट से कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 हो गए हैं सारे, तो नंबर 3 रिकॉर्ड करना है मॉडिफाई. उन्होंने पूछा आप नाम बताइए. तो आप देखिए मेरे नंबर 3 पे मैं चाहती हूँ कि नाम आ जाए हैरिस. तो नंबर उसका हो जाए 5. हम करते हैं लेट्स सी हुआ कि नहीं. वी गो ऑन टू एंड देन वी सी. आप देख सकते हो थर्ड नंबर पर हैरिस आया. नंबर उसका हो गया 5. वो रिकॉर्ड चेंज हो गया जो गर्वित का रिकॉर्ड था. तो अब ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया, लेट्स एग्जिट. बाहर आते हैं. थैंक यू. ओके एंड वी कम हियर. इसको डिकोड करते हैं, समझते हैं. आपको आउटपुट दिखाने का मतलब था टू रिलेट कि क्या हुआ होगा. यहाँ पे क्लास है स्टूडेंट और हमारे पास 2 हेडर फाइल्स हैं, एफस्ट्रीम और कोनियो. एफस्ट्रीम इज फॉर फाइल हैंडलिंग. फाइन. इसमें मैंने बताया इनपुट और आउटपुट दोनों मोड्स चलेंगे. ये जो क्लास है इसको हमने इसका डेटा डालना है फाइल में. वी क्विकली मेड अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड फाइल. एफ स्ट्रीम के साथ खोला. अब हमने इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम नहीं किया, एफ स्ट्रीम किया और यहां बताया, अलग अलग ना करके यहां बताया ios.in, ios.out. यानी फाइल को इनपुट मोड में खोलो, आउटपुट मोड में भी खोलो और बाइनरी रखना ताकि स्पीड हमारी बढ़िया रहे. तो ios बाइनरी. फाइल का नाम क्या है? क्लास डेटा डॉट दैट. ये मेरी फाइल का नाम है. किसका इस्तेमाल किया? कंस्ट्रक्टर? नो, ओपन का इस्तेमाल किया. ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का. अब हम लोग यहां आते हैं. आप देखिए क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि अब हमें डेटा एक साथ डालना है. और क्लास के अंदर अगर आपको मैंने दिखाया था ऊपर, ये गेट डेटा नाम का एक फंक्शन है जो नेम और रोल नंबर ले रहा है. पुट डेटा का एक फंक्शन है जो नेम रोल नंबर दिखा रहा है. तो यहाँ पे आपने क्विकली st.getData किया एक ही बार बार सी इन सी आउट करने की जरूरत नहीं है. एक बार में काम हो गया. और इसको फाइल में लिखा कैसे? जैसे मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाया था. फाइल डॉट राइट कैर स्टार लिखना जरूरी. st क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का नाम है. हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या था? st. राइट. यहाँ पे देख रहे थे ना आप st. तो ये st और किसका साइज? st का, ऑब्जेक्ट का लिख दिया. तो इस तरीके से मैंने अभी पीछे रिकॉर्ड एंटर किया था. फाइन. नेक्स्ट था ch. सेकेंड ऑप्शन जब मैंने चूज किया था तो अब हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना. दिखा रहे थे ना हमको कितने रिकॉर्ड्स हैं. उसके लिए हमें रीड करना है ना. तो पहले तो हमें सबसे पहले आना पड़ेगा क्योंकि अभी हम राइट करके आए, कहीं यहाँ वहां कर्सर होगा. सीक जी यानी रीडिंग के पॉइंटर को हमने कहा कि यार प्लीज पोजिशन योरसेल्फ टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. सो इट इज देयर ऑन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. फाइन. अब हमने कहा, आपने कहा इसको रीड करना है. सो वी राइट फाइल डॉट रीड. जैसे राइट था पीछे, यहाँ रीड हो गया. बाकी सब सेम, कैर स्टार एंड st कॉमा साइज ऑफ st. रीड कर रहे हैं. लूप में क्यों डाला? क्योंकि हो सकता है उसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड हो. तब तक चलो जब तक फाइल आपको कोई रिकॉर्ड देती है. जब नहीं देगी लूप के बाहर आ जाएगा. इस तरह से पुट डेटा के थ्रू आपने सारे दिखा दिए. थर्ड ऑप्शन आपका था, आपने बोला कि मुझे रिकॉर्ड नंबर मॉडिफाई करना है. तो मैंने रिकॉर्ड नंबर वहां पर एंटर किया था 3. तो पहला रिकॉर्ड हमेशा 0th रिकॉर्ड होता है. जैसे आपने बिगिनिंग में भी देखा हम 0 लिख रहे हैं. राइट. तो 0th इज द फर्स्ट रिकॉर्ड. सो 0th, अगर मैंने 3 बोला तो यानी तीसरा रिकॉर्ड वुड बी नंबर 2. सो 3 माइनस 1 जो कि पहला 0 था, एक नंबर पीछे करना पड़ेगा 2. वहां पर आप अपने आप को पोजीशन करिए. क्या साइज है st? शुरू कहां से आपने शिफ्ट होना है? बिगिनिंग से. डेटा को नया गेट कीजिए, मांगिए. हमने नया डेटा मांगा, जो चेंज करना था वो मांगा. क्लियर किया मार्कर को ताकि वो एंड ऑफ फाइल वाली परेशानी ना क्रिएट करे हमारे लिए. और अगर आप चाहें तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी. ना भी करें आप तभी भी ये चलेगा. देन आप करेंगे फाइल डॉट राइट कैर स्टार, ऑब्जेक्ट का नाम, साइज ऑफ st एंड फिनिश. एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन. यस यस, दिस इज द लास्ट. या एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन टू एग्जिट. तो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया. फाइन. ब्रेक क्यों किया? लूप में थे. सो वी जस्ट ब्रोकन आउट ऑफ द लूप
and our program finishes. So today, learners, we have discussed about files, and we have understood that file we can write and we can read data from the file. And I hope you've understood, and it has been a nice journey for you. And please do not forget to close your file. It's our responsibility. अगर हम open भी करते हैं, तो we have to close our files also. Object.close, infile.close. With this, I end my session, and thank you so much. And keep practicing. As much you will practice, you will enjoy. Thank you.